Namaskar. Welcome to another episode on Beyond Headlines. I, of course, have the pleasure of having a very senior journalist and a very veteran figure, Anand Barjanji, with us. And we are going to have some interesting discussion about the interplay of economics and politics when it comes to how is the voter really going to vote, or how should probably the voter be voting. Just to give an overview, the state of the Indian economy has not been so good, irrespective of what the government may be claiming. We have certain issues which have been troubling the common man, which is to do with unemployment. It has to do with rising inflation. It has to do with the lack of confidence in the consumer and consumer spending. It has also got to do with poverty and inequality. That is a background which is worrisome for the common man, as we would believe, and also for the government. After all, these are sectors of the economy which need to be doing well to take us to that target of 5 trillion economy that Modi ji had set for herself. What we are seeing at the moment is that household spending is not taking off. The investments by the corporates is not taking off. And the promised major capital expenditure by the government to give a spurt to the economy is also not taking off. To put it more directly, we also think that there is some kind of a disconnect between policy performance and what the government claims. With this being the state of the economy, the issues then comes is, will these factors be of importance in the coming elections? Because we think that it is democracy which gives a right for the voter to change a government or to check the government in case its performance is not suiting what the voter thinks is for his benefit, for his welfare. And to discuss this, because we have a slew of large, important elections on the cards in this year. One of the most important one would be the Uttar Pradesh elections. I think the election commission is scheduled to announce the dates for the election today, but it is estimated that it's going to be in the third or the fourth week of March. So, no one better than Anandji to actually have a discussion on, will these factors, will this background be a reason of importance for the voter in the Uttar Pradesh elections? Anandji, namaskar. 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 I have the pleasure of inviting you, and as usual, we will have the benefit of some of your most learned views on topics that we talk. मुझे ना आपको एक बार उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, हालांकि आप तो लखनऊ निवासी हैं, उसके कुछ आंकड़े देने हैं। मैंने ये आंकड़े बड़ी केयरफुली निकाले हैं गूगल सर्च करवा के, ये देख के कि कोई ऐसे बायस आंकड़े ना आए जो लगे कि आंकड़े गलत हैं। ऑफ कोर्स इसका कंफर्मेशन आप देंगे, एज आई सेड आप ही का राज्य है इन दैट सेंस। यूपी की जो इकोनॉमी है या जो जीडीपी है भारत में, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट। उसका नंबर सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर यूपी और गुजरात नंबर 4 पे आता है। दूसरा जो यूपी की पर कैपिटा इनकम है वो हमारे नेशनल एवरेज से आधी गिनी जाती है। इट इज रैंक्ड नंबर 28, जो कि एक वरीसम मैटर है। यूपी की पॉपुलेशन हमारे देश की करीब 16% है, लेकिन उसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 8% है। जो यूपी की गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, पिछले साल सरकार की जो इनकम थी वो कुछ 4.25 लाख करोड़ थी, लेकिन सरकार का जो एक्सपेंडिचर था वो कुछ 5.5 लाख करोड़ था, और ये हर राज्य में हो रहा है। इट शुड नॉट बी ऑफ एनी सरप्राइज। यूपी की जो जीडीपी ग्रोथ है 2017 से 21 के बीच में, जो डेटा आ रहा है वो कह रहा है वो कुछ सालाना 2% पे थी। और एक मेन इश्यू ये आ रहा है जिसकी मुझे आपसे चर्चा करनी है कि इस सरकार ने कई सारी पॉलिसीज अनाउंस की हैं, स्टार्टअप्स के लिए, डिफेंस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह के लिए, और कई सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, मेट्रो हो या जो भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो। आनंद जी, ये एक यानी यूपी की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है जो यानी जो मैंने आपके सामने पेश किया। जी जी। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है आनंद जी, ये जो मैंने यूपी की इकोनॉमी की रूपरेखा रखी, आपको इसमें स्टैटिस्टिक और जमीनी हालत में कितना गैप दिखता है? मैं शुरू करने से पहले अपने दर्शकों को भाई आपका अभिवादन है, और एक बात और स्पष्ट कर दूं, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बोली जाती है तो ये भी कहा जाता है कि दुनिया का अगर एक इंडिपेंडेंट देश होता तो हम छठे सबसे बड़े देश होते, 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो लेकिन साइज वाइज अगर हम 16% हैं
एरिया वाइज हम करीब 7.5% ही हैं। मतलब द एरिया विच वी हैव इज ओनली 7.5% ऑफ द टोटल देश की टोटल एरिया। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। जैसा आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि क्या इस चुनाव के मुद्दे, ये जो आप इकोनॉमी के पैरामीटर्स दे रहे हैं और इसको कितना बेहतर किया जाए, कोई भी राज्य करेगा, कोई भी देश करेगा, उस पे लड़े जाएंगे या किन्हीं और मुद्दों पे? मेरा सिर्फ आपसे आग्रह यह है कि काश काश वो इकोनॉमी के मुद्दों पे कोई भी इलेक्शन हिंदुस्तान में लड़ा जाता। लेकिन जो रियलिटी है और जो मुद्दे हैं उनसे बहुत गैप है। मैं एक छोटा सा आंकड़ा देके फिर इसकी बात आगे करेंगे। अभी 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 एक अमेंडमेंट हुआ है जहां पे कहा गया है कि खर्चे की सीमा, एक कैंडिडेट इलेक्शन में जो खर्चा कर सकता है वो विधानसभा में 40 लाख, 28 लाख से बढ़ा के 40 लाख और लोकसभा में 70 लाख से बढ़ा के 95 लाख ये बढ़ाया गया है। अब मैं आ जाता हूं उत्तर प्रदेश पे। विधानसभा के चुनाव है, एक कैंडिडेट 40 लाख रुपया पैसा खर्च कर सकता है। जैसा आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो पर कैपिटा आय है वो नेशनल एवरेज का आधा, करीब करीब, मैं ये सब मोटे तौर पे बोल रहा हूं, 41,000 रुपया सालाना है, मोटा अंदाज ये। इट माइट बी हियर एंड देयर बाय 2-3-5%। अब 41,000 रुपए एक व्यक्ति की आय है। अगर वो 100 साल पैसा इकट्ठा करे, 1 रुपया खर्च ना करे, कुछ हवा पी के जिंदा रहे, पानी पी के जिंदा रहे, तो वो 40 लाख रुपया इकट्ठा करेगा इलेक्शन लड़ने के लिए। तो पहले तो ये चीज समझ लीजिए कि इलेक्शन हो किसके लिए रहा है। ये इलेक्शन उस आम आदमी के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आम आदमी के लिए इलेक्शन हो रहा होता तो आप 40 लाख, आप इस देश में कैसे कोई सोच सकता है कि 40 लाख रुपए का आप सीमा, और ये सब जानते हैं कि ये एक फिक्टिशियस फिगर है। एक 40 लाख रुपए आप लिख रहे हैं लेकिन एक्चुअल उसमें आप ज्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि पार्टी का खर्चा इसमें नहीं आता है। तो मैं अपने स्टेटमेंट को इसलिए यहां से शुरू कर रहा था कि एक गरीब राज्य, हिंदुस्तान के सारे राज्यों में हम लोग गरीब राज्य हैं। और दूसरी बात जहां से मैं और शुरू करूं, मैं फिर आऊंगा स्टेट ऑफ इलेक्शन पे। आपने कहा जैसे हम टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द इकोनॉमी का करीब 8% करते हैं, हमारा टोटल एरिया भी 7.5% है, अगर उस तरह से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें। लेकिन एक एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ, जैसे हमारा एक राष्ट्र है ना, उसको अगर टोटलिटी में देखें तो उत्तर प्रदेश का व्यक्ति, आपको लेह लद्दाख में गया था, वहां पे भी वो कहीं पेंट करता हुआ, कहीं पत्थर तोड़ता हुआ मिल गया था, और आप केरल चले जाइए, वहां पे भी कहीं ना कहीं नाली साफ करता हुआ, झाड़ू लगाता हुआ आपको मिल जाएगा। मुंबई में भी मिल जाएगा, आज मुंबई में भी मिल जाएगा, माफ कीजिएगा, ये आप लोग भाई सेंसिटिव है इसके बारे में। अब मैं आ रहा हूं, जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र जो है सबसे नंबर 1 पे है। आनंद जी, मैं आपको यहाँ एक मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जी जी। आपने अभी कहा कि यूपी का वर्कर है जो लद्दाख में भी मिलेगा और केरल में भी मिलेगा, और दोनों का जब आपने उदाहरण दिया तो उसका जो व्यवसाय कहा वो व्हाइट कॉलर नहीं कहा, वो ब्लू कॉलर कहा। और मैं समझता हूं कि यूपी की शायद मेन प्रॉब्लम यही है कि जो हमारी पॉपुलेशन है यूपी की में, उससे जो वैल्यू एडिशन निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा है। ठीक बात, ठीक बात। नहीं, मैं आपकी उसी बात पे आ रहा था। मेरा कहना यह है कि जब आप महाराष्ट्र जो करीब 32.24 लाख करोड़, मतलब करीब करीब दुगना, जो उसके नेक्स्ट, मतलब उत्तर प्रदेश का करीब करीब दुगना अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, तो महाराष्ट्र जरूर है, स्टेट है, वहां के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन उसका जो मैन पावर वाला कंट्रीब्यूशन है किसी भी स्टेट में, उसमें उत्तर प्रदेश का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर होगा। ये बिना मैं किसी आंकड़े की जानकारी के लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि वो हिस्सा आज पूरे देश में, आज पंजाब में जो खेती होती है उसका एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर जाके वहां करते हैं। ये जरूर है कि पंजाब खेती के मामले में बहुत आगे है, बहुत एडवांस है, लेकिन उसका जो मैन पावर वाला कंपोनेंट है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश उसको सपोर्ट जरूर करता है। तो एज नेशन, एज अ टोटलिटी, मुझे ये, और इसमें कोई खराबी नहीं है, मुझे हरदम ये लगता है कि पूरा देश है, उस देश में एक हिस्सा ऐसा है जिसके पास शायद इस तरह की मैन पावर है, उसकी गरीबी की वजह से, उसके हिस्टोरिकल रीजन से वो ये प्रोवाइड कर रहा है। वो अपने जस्ट टू सपोर्ट व्हाट यू आर सेइंग, आई मस्ट इंटरव्यू यू।
जो भारत में ओवरसीज रेमिटेंसेस आते हैं वो भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आते हैं। आते यानी हैं, उत्तर ठीक। प्रदेश का वर्कर भी बाहर, यानी हमारे राज्यों के नहीं, ओवरसीज या फॉरेन टेरिटरीज में भी उनका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है। ज्यादा है। और वो केवल फॉरेन एक्सचेंज का रेमिटेंस नहीं, इवन फ्रॉम द इंटर स्टेट भी अगर आप कोई इस तरह का आंकड़ा आएगा कि महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र पैसा नहीं जाता होगा, महाराष्ट्र में जो काम करने, मैं बड़े पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उस छोटे गरीब किसान की, उस कामगार मजदूर की जो कुछ ना कुछ रेमिटेंस भेज रहा है। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्टेट है हमारे यहां। आज हम जैसे स्टेट कहते हैं ना कि नहीं मेरा ये है मेरा ये, नहीं, आज कोई भी स्टेट स्टैंड अलोन ना वो प्रोग्रेस कर सकती है, ना वो डेवलपमेंट कर सकती है, ना उस जगह पहुंच सकती है, वो कोई भी स्टेट हो, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ, मुझे जैसे अगर यूपी का व्यक्ति है, वो अगर मैं अपना हाथ वहां बटा सकता हूं तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर वो दे सकते हैं। तो एक तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चश्मे से देखने की जरूरी है। दूसरा, यू है जिसको कहते हैं ना बुल्स आई, जो आपने असली बात कही वो आपने एजुकेशन की कही थी। मेरे पास एक आंकड़ा है, पूरे हिंदुस्तान की जो 374 सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है एजुकेशन वाइज, उसमें से 41 डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश की टोटल 75 है, मोर देन हाफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स हिंदुस्तान की बैकवर्ड, एजुकेशन वाइज बैकवर्ड में हम लोग आते हैं। जबकि हमारे यहाँ का आईआईटी, हमारे यहाँ के, आप वैसे देख लीजिए, आज का न्यूज़पेपर है छपा हुआ है, मतलब फुल पेज एड छपा हुआ है कि कितने 47 या 57 मेडिकल कॉलेजेस, ये वो, हम लोग आंकड़े तो पेश कर लेते हैं, लेकिन ग्राउंड पे क्वालिटी को कहीं ना कहीं हम आज की तारीख में हमारी वो क्वालिटी नहीं रह गई है। मैं एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा। एक समय में हम सब लोग जब बड़े हो रहे थे तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा जैसे नौकरी का वो था भाई आईएएस बनना, आईएएस वाज द अल्टीमेट, वो कि आईएएस बन जाएंगे, उससे आगे कुछ नहीं। और दूसरा था इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज। ये तीन चीजें हम लोग इसके इर्द गिर्द, किसी भी एक परिवार में जो बच्चा पढ़ रहा था उसके लिए होता था। आईएएस में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का डोमिनेंस होता था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लोग, एक एएनझा हॉस्टल है जो मेयो हॉस्टल पुराना बोलते थे, उसमें विंग वाइज वो होता था कंपटीशन कि इस विंग से अगर 8 आए तो उस विंग से 12 आए। यूपी हैज लॉस्ट दैट प्लेस। आज हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लेकिन वी हैव लॉस्ट दैट प्लेस। दूसरा, एक मेडिकल कॉलेज की बात होती थी और यूपी का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो थी, केजीएमसी बोलते थे उस समय कॉलेज होता था, उसका उसका डंका बजता था। उसका डंका केवल हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, और अगर ये होता था केजीएमसी तो एक प्रूफ ऑफ अप्रूवल था, एक प्रूफ ऑफ क्वालिटी था। इंडिया का आईआईटी था, द बेस्ट ऑफ ब्रेन्स आईआईटी में आए थे, लेकिन आज हमने वो समहाउ वी हैव लॉस्ट दैट इनिशिएटिव। उसके कारण बहुत है, उसके कारण, और मैं हरदम ये मानता हूं कि मूल रूप से कारण पॉलिटिकल होते हैं, क्योंकि जिस दिन आप ये इफ यू लूज साइट, आपको कहीं ना कहीं वो चीजें आने लगती हैं। आज हमें अगर इलेक्शन आया है, हमें 6-6 पेज के एड रोज देने की कौन सी जरूरत पड़ रही है कि आपको अपनी बात, जैसे बोलते हैं ना काम बोलता है, तो अगर आप काम किए होते तो काम बोलता। आप अगर किसी भी जगह जाके रहिए, और मैं एक और छोटा उदाहरण दूंगा जो आपको लगेगा आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, और विथ ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, जिनके बारे में ये मैं नाम ले रहा हूं, विथ ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, पूरे आदर के साथ, जब देश का बंटवारा हुआ था तो बहुत से लोग आए थे जिनको हम लोग रिफ्यूजीज बोलते थे। वो रिफ्यूजीज जब आए थे तो वो जिस भी जगह रहते थे वो वहां सबसे गरीब लोग होते थे, लेकिन 10 साल 20 साल के अंदर वो वहां के सबसे सबसे मेहनतकश और सबसे प्रॉस्परस लोग हो गए, क्योंकि उन्होंने वो मेहनत की। मैं जिस रेफरेंस में ये कह रहा हूं, आपने अगर उनकी मेहनत बोलती थी, वो वहां प्रॉस्पेरिटी दिखती थी, उनके बच्चे बेहतर कपड़े पहनते थे। आज अगर उत्तर प्रदेश में अच्छाई है तो आपको एडवर्टीजमेंट डालने की जरूरत नहीं है। तो मैं इस रेफरेंस में ये बात कह रहा था कि ये बहुत देश का दुर्भाग्य है, और पूरे देश का, सिर्फ यूपी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कि यहां जब इलेक्शंस आते हैं तो हम लोग इमोशनल इश्यूज पे लड़ते हैं। हम लोग लड़ते हैं मंदिर पे, हम लोग लड़ते हैं बालाकोट पे, हम लोग लड़ते हैं अजीब अजीब इश्यूज पे, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैं बिल्कुल ये मानता हूं, मैं सनातनी हिंदू हूं, प्रैक्टिस करता हूं, रोज पूजा करता हूं, लेकिन इट इज माई पर्सनल थिंग। हिंदू हिंदू के बारे में एक छोटा सा और उदाहरण दे दूं। अभी मतलब जितने लोग हिंदू हैं, सब लोगों ने शादियां देखी होंगी, करोड़ों शादियां हुई हैं, अरबों शादियां हुई हैं। आज तक मुझे
कभी कोई ऐसा शादी में पंडित जी नहीं मिले कि एक लड़की का पंडित, एक लड़के का पंडित और उनके एक मत हो। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर रिलीजन। और हम उसको मतलब वी आर प्राउड ऑफ इट। तो कहना यह है कि इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। अब आप रिलीजन की बेसिस पे अगर इलेक्शन लड़ने लगोगे तो ये सारी चीजें गौड़ हो जाएंगी। तो मुझे ये लगता है कि जैसा आपने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत ही रेलेवेंट है, और उस पे जब आगे आएगी तो मैं उस पे और स्पेसिफिक चीजों पे बात करता चलेंगे हम लोग। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी है कि इलेक्शन जरूर इन मुद्दों पे होना चाहिए जो हमारे जीवन को, हमारा एजुकेशन, हमारा स्वास्थ्य और हमारा पर डे की आमदनी। आज हमारी पर डे की आमदनी कहां है? मतलब हम कुछ ऑल इंडिया वो 816 रुपए, अजीब अजीब से फिगर्स आएंगे, आपको लगेगा ये कौन सी फिगर्स है भाई? क्या आदमी कोई जिंदा रह सकता है? माइग्रेंट ले जब इस समय कोरोना का जब एक वो चला, कहर चला 2020 में, हम सब लोगों ने देखा, हम सब लोगों ने देखा जिस ढंग से लोग अपने घर की तरफ भागे। और एक मुश्किल वाली चीज ये थी, हमने वी मेड लॉट ऑफ टॉल क्लेम्स। सबसे ज्यादा जो घर की तरफ लोग भाग रहे थे, यूपी बिहार के लोग भाग रहे थे, झारखंड के लोग भाग रहे थे, छत्तीसगढ़ के लोग भाग रहे थे। एक चीज आपने देखा उस समय ये था कि नहीं नहीं अब ये आ गए हैं और हम इनका खुले दिल से स्वागत करेंगे। उन माइग्रेंट लेबर की बहुत बुरी हालत हुई। यहां पे नौकरियां नहीं है, यहां पे नौकरियां नहीं है। उनको जैसे वो घर आ गए, कुछ दिन तो रह लिए, उनको फिर वापस जाना पड़ा क्योंकि और कोई चारा नहीं है। अब उसमें से कुछ जा गए हैं, कुछ नहीं गए हैं। और आज कोई भी सरकार, मैं इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कह रहा हूं, कोई भी सरकार अगर आती है तो उसका ज्यादा कुछ ध्यान इस पे रह जाता है कि मेरा वोट कैसे सेट हो। हाउ यू कैन हैव अ इलेक्शन कि ये राजभर है, तो ये निषाद है, तो ये कुर्मी है, ये यादव है, इस पे वोट इलेक्शन हो रहे हैं। इस पे हमारे देश का जो नेतृत्व है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो मैंने इतने लोगों को, इतने बैकवर्ड को वो टिकट दिया, मेरे यहाँ इतने मंत्री जो हैं वो इस जात के हैं, ये शर्म आनी चाहिए इस देश के लोगों को। तो मेरा सिर्फ अभी सबमिशन ये है कि एक अब कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक समय जरूर आएगा जब बेसिक मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा और वो मैच्योर डेमोक्रेसी की डिमांड होगी। जैसे आज भी कहा जाता है अमेरिका में इश्यूज आर रियल। जब आप लड़ते हैं, ठीक है, वहां काले गोरे का या सोशल इश्यूज सोसाइटी के आ सकते हैं, पर वो स्टेट वाइज होते हैं। हमारे यहाँ जितना वो मतलब उसको बिल्कुल मेजर इश्यूज को ओवरशैडो कर देते हैं, वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा मेरे ख्याल में। अगर कोई सरकार एक्चुअली परफॉर्म करती है, अगर यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्लेम्स डाले जाते हैं वो प्रोजेक्ट सही में टेक ऑफ करते हैं और लोगों की जिंदगी में सुधार आता है, उनकी अर्निंग कैपेसिटी में सुधार आता है, उनके कारोबार में सपोर्ट होता है, अगर इस तरीके की परफॉर्मेंस हुई तो एक रैशनल दिमाग ये कहता है कि जो वोटर को बहकाने के मुद्दे हैं, मंदिर के या मस्जिद के या रिलीजन या कास्ट रिलेटेड जो मुद्दे हैं, और आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि सरकार ये कहना चाहती है हमारे कैबिनेट में इतने फलाने वर्ग के मंत्री हैं, न कि इतने मंत्री हैं जिन्होंने अव्वल दर्जे का काम किया है। तो सवाल ये आता है कि अगर एक स्टार्टिंग पॉइंट आए जहां पे किसी सरकार ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी हो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, या इन टर्म्स की प्रोजेक्ट इतने हुए कि लोगों को यूपी से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वहीं पे उनको नौकरियां मिल गई, तो क्या एक ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट आएगा जिससे कि फिर ये जो हम इन जो मुद्दों की बात कर रहे हैं ऑफ नॉट वोटिंग ऑन रियल इश्यूज, क्या वोटर प्रभावित होगा और अपना दायरे चेंज करेगा? यूपी में क्या ये ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा? देखिए, मैं उसको आना चाहिए, मतलब हम सब लोग ये चाहते हैं कि वो टर्निंग पॉइंट आए। मुश्किल क्या है कि आज आपकी संवेदना कितनी है। मैं एक अजीब सा एग्जांपल दूंगा जो आपको लगे। बहुत से ऐसे बाहुबली, बहुत से ऐसे लोग जिनके पास बहुत ताकत और आपको लगता है वो लोग लगातार इलेक्शन जीतते हैं, 1 इलेक्शन, 2 इलेक्शन, 3 इलेक्शन, 8-8, 10-10 इलेक्शन, उनको कोई हरा नहीं सकता है। और मैं एक चीज बता दूं, ये जरूर है कि लोगों का आतंक कहीं हो सकता है, लेकिन आज के जमाने में जब सूचना क्रांति कहां पहुंच गई है, जब आप एक एक छोटी छोटी चीजों को आप रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, ये बिल्कुल संभव नहीं है कि आप पूरी जनता को आतंक में रख लें। तो ये जरूर है, जो पहली चीज मुझे लगती है कि वो उस रिप्रेजेंटेटिव को अगर कोई जिताता है
तो उसका पहला कारण यह है कि ही केयर्स फॉर हिज कंस्टिट्यूएंसी। वो अपने कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की देखभाल करता है। वो आके, क्योंकि वो किसी भी पार्टी में हो, वो घूमता भी है उस पार्टी से, तब भी वो जीत जाता है। और ऐसे एक नहीं, हर स्टेट में दर्जनों उदाहरण है। देयर आर पीपल, आई विल नॉट से द मेजॉरिटी नहीं, लेकिन एक मिनिमम लोग हैं जो बार बार इलेक्शन जीतते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं उनको इलेक्शन का वो आता है, तरीका आता है, वो कैसे भी जीतते हो, लेकिन उनका कनेक्ट विद देयर पीपल बिल्कुल डायरेक्ट होता है। पहली चीज ये है, हो सकता है कि उनकी स्टेट, उनके उस कंस्टिट्यूंसी में सब कुछ उतना अच्छा नहीं हो जैसा हो, लेकिन कम से कम वो उन लोगों की बात सुनने को तैयार हैं। जो भी रिसोर्स आते हैं, वो चाहे मान लीजिए 100 किलोमीटर सड़क के आए, तो वहां पे दरकार है 1000 किलोमीटर की, तो वो 100 किलोमीटर को उसी में कुछ प्लान करके आगे पीछे देते हैं। मैं अभी जो आपने कहा कि ये आंकड़ा भी इतना बन रहा है, इतना बन रहा है, इतने टेक ऑफ हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज, आज का पेपर है, यूपी, उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1, 59 मेडिकल कॉलेजेस। इसी उत्तर प्रदेश में आज आपने 59 मेडिकल कॉलेजेस आपने खोल दिए हैं। आपने क्या किया है, आपने सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को कन्वर्ट किया है इनटू मेडिकल कॉलेज। ठीक है, अच्छी वो है अगर इसको आप ठीक से करें। मुश्किल क्या चीज है, मुश्किल है फैकल्टी। फैकल्टीज नहीं है। आपने अभी हाईकोर्ट ने, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने अभी एक 10 दिन पहले एक महिला रेडियोलॉजिस्ट थी, अगर मैं गलत नहीं हूं, वो सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में पोस्टेड थी। उनके जो भी उनका विभाग है मतलब सरकार का, उसने कहा कि नहीं, 2 दिन आप सहारनपुर मेडिकल कॉलेज रहेंगी और 4 दिन मेरठ मेडिकल कॉलेज में जाके आप काम करेंगी या पढ़ाएंगी, क्योंकि हमारे पास फैकल्टी नहीं है। वो महिला हाईकोर्ट में, उन्होंने कहा मुझे एक जगह रख दो, आई हैव अ स्मॉल चाइल्ड टू टेक केयर, मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ कि 2 दिन यहां और 4 दिन वहां। आप किस स्टेट की बात कर रहे हैं? और ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज जो अंधाधुंध खोले जा रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि सबसे आसान चीज होती है ये कंस्ट्रक्शन का काम कर दो, क्योंकि उसमें एवरीवन इज हैप्पी। सरकार को खुशी होती है कि मैंने देखिए 49 या 59 मेडिकल कॉलेज बना दिए। ठेकेदार साहब को बहुत खुशी होती है कि इतना आया, तो ठेकेदार साहब भी खुश हैं। जो ठेकेदार साहब से जो लोग इससे लाभ मिलता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो भी खुश है। सरकार को जीएसटी वीएसटी जो आता है वो भी खुश, एवरीवन इज हैप्पी। पर वहां ना छात्र आता है ना वहां पढ़ाई होती है। तो मेरा कहना यह है कि आप जब लॉन्ग टर्म किसी चीज को देख रहे हैं, तो आपको केवल एक मेडिकल कॉलेज जैसे हैंड होल्डिंग होती है। आप छोटा सा भी, आप एक छोटा सा काम भी करते हैं, तो आप पहले देखते हैं ना कि थोड़े दिन कैसे चलेगा, फिर इसका रेवेन्यू कैसे होगा। आप वो देख ही नहीं रहे हैं। आप किसी तरह से कंस्ट्रक्शन को इसलिए कर रहे हैं कि वहां पे, अच्छा आजकल एक और जो बाकी लाभ है वो एक मुश्त दिए जा रहे हैं। पहले इट वॉज कनेक्टेड विद बिल, कि आपका बिल रिलीज होता जाएगा, बाकी जो डिपार्टमेंट के लाभ हैं वैसे मिलते जाएंगे। नहीं, अब वो वन टाइम है, जैसे आप लाभ दीजिए तब आपका वो रिलीज होगा, बिल रिलीज होगा। तो दिस सूट्स एनीवन हु इज देयर इन दिस बिजनेस। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया, वो तो एक तरह से ये बात हो गई कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक दूसरा नया बोर्ड लगा दिया। इट डज नॉट इम्प्रेस मी कि कोई रियल मेडिकल कॉलेज आया होगा। और जब आप ये कहते हैं कि फैकल्टी ही नहीं है तो पढ़ाएंगे क्या, यानी पढ़ाने प्राध्यापक नहीं है और छात्र भी नहीं है, तो इट कम्स डाउन टू द बेसिक इश्यू कि ये जो इश्यूज हैं ऑफ मेकिंग टॉल क्लेम्स, बिग गैप बिटवीन पॉलिसी एंड परफॉर्मेंस, या लोगों को बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दे के बरगलाना, जो वोटर है वो कब इस पे अपना आक्रोश दिखाएगा? वो मैं इसको भी थोड़ा मैं कर दूं, आपको सुन के ताज्जुब होगा। देयर आर केसेस जब मेडिकल कॉलेजेस ने कहा है कि मेरे यहां इसका चिकित्सा की सुविधा नहीं है, उन्होंने रेफर किया है टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। कैन यू इमेजिन? मतलब गंगा को उल्टा बहा दिया गया है। जनरली क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहता है कि भाई ये नहीं है और हम स्पेशलिस्ट के यहां भेजेंगे मेडिकल कॉलेज। इट इज द अदर वे राउंड। मेडिकल कॉलेजेस में एक नहीं कई केसेस हैं जहां पे उन्होंने उसको वापस भेजा है। खैर, दिस इज, मैं इस बात को इसलिए आपसे कह रहा था कि ये भी एक सोचने की जरूरत है, और ये हमको आपको जो भी नीति निर्धारण है, जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको ये सोचना जरूर पड़ेगा कि आप क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब रही बात टॉल क्लेम्स की, मुझे एक चीज बताइए, और ये मैं बिल्कुल संजीदगी से और विद ऑल दी ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी स्टेक होल्डर,
हम और आपने पिछले 2 साल में देखा जो रेलवे की दुर्गति हुई है। रेलवे के जो रेट्स जिस तरह से बढ़ गए। हम मैं ईस्टर्न यूपी में एक जगह है कुशीनगर। कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसका उसका उद्घाटन किया गया। उसपे एक स्पाइस जेट की अभी जब से उद्घाटन हुआ है 2-3-4 महीना हो गया, वहां पे एक स्पाइस जेट की केवल एक फ्लाइट आती है। नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि आ, एक 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 एयरपोर्ट को रन करने के लिए उसमें कितना पैसा लगता होगा या उसको मेंटेन करने के लिए। आपको सुन के ताज्जुब होगा, उस कुशीनगर से 30 किलोमीटर दूर महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है और उस महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में रेल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विदाउट रेल और उसके 30 किलोमीटर दूर आप एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट खोल रहे हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पॉलिसी मेकिंग है ये कहीं लॉपसाइडेड है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो जो पैसे वाले हैं ये उनको देख के बनाई जा रही है। क्योंकि आप कम से कम लखनऊ और यूपी के मैं कई उसको बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, आपने लखनऊ का एयरपोर्ट अडानी साहब को दे दिया है। उसके जो इवन पार्किंग चार्जेस हैं वो बढ़ गए हैं भाई। ये जरूर किया उन्होंने 6 मिनट तक फ्री को 8 मिनट कर दिया, लेकिन 30 मिनट के बाद वो 150 रुपए पार्किंग लग रहा है। मतलब मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि इस आज उत्तर प्रदेश हो या कोई भी प्रदेश हो, उसको सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने से पहले आपको अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक करना है। आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक करेंगे तो यू आर एड्रेसिंग मेनी थिंग्स। आप अपने इन्वायरमेंट को ठीक करेंगे, आप अपने खर्चे को कम करेंगे, आप बहुत सी चीजें करें। आप लोगों के लिए सुविधा देंगे कि भाई स्कूल पढ़ने आने जाने में आसानी हो। लेकिन आप उसको ठीक करने के बजाय आप कह रहे हैं मैं बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, मेट्रो चलाएं। अब प्लेस लाइक गोरखपुर, अ प्लेस लाइक लखनऊ, ये सारी मेट्रोज खाली जा रही हैं। आपने अभी तक कुछ सीखा नहीं। आप उठा के देख लीजिए, दिल्ली मेट्रो को छोड़ के हिंदुस्तान की सारी मेट्रोज आर रनिंग इन लॉसेस। एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि ओनली बॉम्बे मेट्रो इज मेकिंग प्रॉफिट। ओके एवरी अदर मेट्रो इन द कंट्री इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट। और मेट्रो बनाने के पहले जो पैसेंजर्स के एस्टिमेट्स के आंकड़े आए थे, दे आर ओवर स्टेटेड इन एवरी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट मुंबई। तो आपने जो कहा, ये प्रोजेक्ट हैं जो शायद शो पीस की तरह बनाए जा रहे हैं। वेदर आम आदमी के कोई काम के हैं या नहीं, वो उसका कोई किसी को परवाह नहीं है। कुशीनगर में अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट डाल दिया और महाराजगंज में कोई रेलवे स्टेशन तक नहीं है, तो व्हाट आर वी सेइंग? व्हाट वी आर सेइंग इज कि शायद ये जो रूलिंग पार्टी या जो भी पार्टी है, उसको वोट की चिंता या उनका जो वोट बैंक है वो शायद आम आदमी नहीं है, और वो शायद आम आदमी को इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि उन्हें रियल इश्यू से शायद पड़ी नहीं है। मैं आपको वापस इसी मुद्दे पे खींचने वाला हूं। अगर किसी परिवार में, वो जो भी धर्म फॉलो करता हो, अगर उस परिवार में उनके पढ़े लिखे बच्चे अनएम्प्लॉयड, बिना कामकाज के बैठे हैं, तो क्या वो सरकार, जो भी सरकार हो, जिस भी पार्टी की सरकार हो, उसके अगेंस्ट अपनी नाराजगी या आक्रोश बताएंगे या नहीं बताएंगे? और अगर नहीं बताते हैं तो फिर जो इसका पूरा ब्लेम है वो तो वोटर पे आ गया। भाई, आपको जब वोट करके एक बेहतर सरकार लाने की, या एक वो सरकार जो कि उनके प्रोमिसेस पे सही तरीके से परफॉर्मेंस दे, आपने अगर वो ऑप्शन खो दिया। जैसे अगर हम ये इस वक्त की सरकार की बात करें, 2016 में डिमोनेटाइजेशन आया आनंद जी, उससे जो एमएसएमई वर्ग था उस पर बहुत ही यानी उल्टा असर पड़ा है। कई लाखों कारोबार बंद हो गए हैं। वो 2016 में आया, लेकिन 2017 में और फिर 2019 के चुनाव में तो वापस पूरी मेजॉरिटी से आ गए। 2017 में जीएसटी आया, उससे वापस ये जो छोटे कारोबारी हैं उनको अगेन बहुत ही एडवर्स इफेक्ट हुआ। तो ये क्या कारण है कि जब हमारे पास वोटिंग अपॉर्चुनिटी आती है और हम अपनी नाराजगी दिखा के कोई सही गवर्नमेंट लाना चाहते हैं, वो क्यों नहीं आती आनंद जी? और क्या यही यूपी में वापस रिपीट होगा? देखिए, ये आपने बिल्कुल, ये क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम है कि इशू की जगह अगर आप किसी और इशू पे अपने मत का प्रयोग करेंगे तो यू विल गेट व्हाट इट इज हैपनिंग। मैं इसका एक और उदाहरण देता हूं, और वो मैं इसलिए दे रहा हूं कि दर्शकों को थोड़ा समझना आसान हो।
आज हम और आप जो अपने को कहते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम और आप, हम भी जब जाते हैं कहीं बच्चे का एडमिशन कराने, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज या छोटे स्कूल, साहब हमारे क्लासरूम एसी है, हम दिन का खाना भी देते हैं। अच्छा, आप इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं, हमारा काम 100% प्लेसमेंट देते हैं। अब मुझे ये बताइए, किसी विद्यालय का या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का मूल काम पढ़ाना है कि एसी की हवा खिलाना है, कि दिन में खाने के साथ सूप देना है, कि आपका प्लेसमेंट है? प्लेसमेंट मतलब हम सब लोग पढ़ के निकले हैं, विद्यालय का, शिक्षक संस्थान का कोई काम नहीं है प्लेसमेंट कराने से। ये हमने अंधा एक काम कर लिया है कि अमेरिका से हमने उठाया कि हमारा प्लेसमेंट इज नॉट नन ऑफ एनी, एक किसी भी शिक्षण संस्थान का कोई इससे लेना देना नहीं है। आप अच्छी पढ़ाई दे दीजिए, उसके बाद उसका जहां होगा वो अपना लगेगा। लेकिन आज हमने मान लिया है कि नहीं नहीं, उसका प्लेसमेंट अच्छा होता है इसलिए मैं वहां जाऊंगा, जो बिल्कुल बिल्कुल गैर वाजिब बात है। उसी तरह से इलेक्शन में क्या हो गया है कि मूल मुद्दों को छोड़ के, अब मैं आपको एक छोटा और उदाहरण दूं इसी में जो अभी हुआ, और मैं करंट उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि वो हमारे उत्तर प्रदेश के कम से कम चुनाव को प्रभावित करेगा। कल या परसों सरकार ने किया है कि 50% वेव ऑफ किया है किसानों की बिजली को। कहा गया है किसानों की बिजली, जो शायद ₹1.25 यूनिट थी उसको 60 पैसा कर दिया, 60 पैसा। जो कहीं फिक्स, मतलब 4 तरह की कैटेगरी थी, कहीं फिक्स लेते थे, कहीं पर यूनिट लेते थे, हर एक को 50% किया है। एक तरफ आप ये कम कर रहे हैं, उसका एक नॉर्मल रिएक्शन मैं बता दूं, जो शहर में रहने वाला व्यक्ति है, मेरे जो दोस्त मित्र हैं जिनका गांव से संपर्क नहीं है, उनको ये देखो फ्री में लोग ले रहे हैं, और ये क्या, और ये किसान जो है, ये बिल्कुल इन किसानों की वजह से ही हमारी सारी दुर्दशा है। दैट इज द वे दे आर टेकिंग इट। उत्तर प्रदेश में जो डिस्कॉम, जो जितनी ये डिस्कॉम है, वी आर वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द कंट्री, जहां पे हमारे बहुत बकाए हैं, हम पैसे नहीं दे रहे हैं, हमारे यहां बिजली का दाम बहुत ज्यादा है, लेकिन हम फिर एक तरह से फ्रीबीज बांट रहे हैं क्योंकि मुझे इलेक्शन जीतना है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि जो किसानों की मूल बात है, उसको आप टोटलिटी में देखना होगा। किसान कभी भी नहीं चाहता है कि उसको कोई सब्सिडी मिले। किसान डजंट वांट फ्री बिजली, किसान डजंट वांट वो। किसान चाहता है कि जो उसका, जो भी चीज वो उत्पाद करता है, जो भी चीज वो प्रोड्यूस करता है, उसका एक उसको इज्जत वाला, कम से कम जो प्रोड्यूस किया कॉस्ट प्लस समथिंग मिल जाए। मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या कहती है, पर एनीवन, आपने अगर कुछ लगाया तो उससे आपकी जो कॉस्ट है उससे कुछ ज्यादा मिल जाए। आप उसको बजाय ये देने के, आप कह रहे हैं कॉस्ट तो हम नहीं देंगे, लेकिन हम तुम्हें फ्री बिजली दे देंगे, हम तुम्हें फ्री 2000 रुपया हर 3 महीने में दे देंगे। वाई? आप ये इतना घुमाना फिराना क्यों कर रहे हैं? आप ये सब बंद करिए, आप उसको उसका एमएसपी ठीक से दे दीजिए। किसान को आपकी कोई सब्सिडी की जरूरत नहीं है। और एक नहीं, आप इस पे रेफरेंडम कर लीजिए भाई, आप एक इलेक्शन इसी बात पे लड़िए। आप एक इलेक्शन लड़िए कि हम किसी चीज पे नहीं है, लेट अस फाइट अ इलेक्शन कि ये होगा कि ये होगा। तो ये मैं जो जिस बात को बार बार कह रहा हूं कि आप जब तक इमोशनल इश्यूज पे, ये जरूर है कि लोग कहते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन इज वेरी इमोशनल वन, नहीं, वी पर से आर इमोशनल पीपल। हम कभी कभी भाई इमोशन में भाई भाई के मुकदमे होते हैं और पूरी जनरेशन लड़ती रहती है उन मुकदमों को, जिसका कोई मतलब नहीं है। आप मैं ये यूपी बिहार के रेफरेंस में कह रहा हूं, मैं उन पर्टिकुलर कम्युनिटीज का नाम नहीं ले रहा हूं, इट विल नॉट बी प्रॉपर। जो प्रॉस्परस कम्युनिटीज हैं देश की, उनके यहां मुकदमे नहीं होते हैं। उनके यहां अगर पिता नहीं है या कोई भी बंटवारा होना होता है, वो बैठ के अक्रॉस द टेबल कर लेते हैं उनके यहां मुकदमा। हमारा यूपी बिहार में चलो देख लिया जाएगा, चलो अब वो भी मुकदमा, चलो 40-40 साल तक। मेरे पिताजी जमीन का मुकदमा करने जब जाते थे, तो जो उनके अगेंस्ट, वो भी उनकी गाड़ी में बिठाते थे, वो पैदल, उनको लगता था कि पैदल कहां जाएगा, तो बैठो, क्योंकि जमीन के मुकदमे बहुत मुश्किल होते हैं। मैं इसको इस रेफरेंस में कह रहा हूं कि हम लोग इमोशनल लोग हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये नेताओं की बेसिक और नैतिक जिम्मेदारी बननी चाहिए कि वो इसको एक्सप्लॉइट करने के बजाय, हमारे इमोशंस को एक्सप्लॉइट करने के बजाय, साफ साफ बोले कि भाई देखिए इस जगह, मैं ये दो उदाहरण देके इसको खत्म करूंगा। मैं मान लीजिए मैं एक किसी लखनऊ से आता हूं, मैं लखनऊ में कहूंगा कि भाई आज मैं लखनऊ से लड़ रहा हूं, यहां का ग्राउंड वाटर लेवल 200 फीट है। 5 साल बाद मैं इसी मुद्दे पे इलेक्शन लड़ूंगा कि ये 200 से 190 हुआ है कि 210 हुआ है। एक, मैं आज यहां
मान लीजिए मैं किसी गांव की कंस्टिट्यूंसी में लड़ रहा हूं, से एनी एनी कंस्टिट्यूंसी, मैं कहूंगा कि यहां पे मवेशी और आदमी का जो वो है रेशियो है कि एक आदमी के पीछे मान लीजिए 2 जानवर हैं, तो भाई या 2 किलो दूध होता है या जो भी, मैं कोई ऐसा पैरामीटर पकड़ूंगा, 5 साल बाद आप मुझे इस पे वो करना और फिर मुझे वोट देना। हम उसकी जगह ये नहीं कहते हैं, हमने मंदिर बना दिया, अब हम काशी विश्वनाथ बनाएंगे, उसके बाद हम मथुरा बनाएंगे। भाई हम सब लोग पूजा करते हैं, कितनी बार आप काशी विश्वनाथ और मथुरा जाते हैं, ये हमारी आस्था की बात है। तो मुझे ये कहना है कि वो इंडियन पॉलिटिक्स में ये जरूरी है, और खास करके वो लोग जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि इन इश्यूज की जगह वो उन इशू, अच्छा, और मुझे लगता है कि ज्यादा दिन तक आप बहुत बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। आपने बहुत बेवकूफ बनाया है, जो नए जनरेशन है उसको बिल्कुल इस आज आज क्यों चिंता, आज 6 पेज के ऐड क्यों देने पड़ रहे हैं? क्योंकि यंगर जनरेशन को एक बेचैनी है, उनको यह है कि बेरोजगारी है, भयंकर बेरोजगारी है, पैसे की दिक्कत है। आप अगर कहीं पे भी जाके देख लीजिए, एक यंग लड़का जो पढ़ा लिखा है वो घर में बैठा हुआ है, नौकरी नहीं है। तो वो एक गुस्सा है कहीं ना कहीं। अब उस गुस्से की जगह आप उसके इमोशनल, उसको कितना, उसको मैं कहूंगा फुसला सकते हैं, वो देखने वाली बात होगी, लेकिन वो फुसलाना धीरे धीरे पहले के मुकाबले जरूर कम हो रहा है। सो आई हैव अ क्वेश्चन टू यू, विच इज, ये जो बड़े बड़े अखबारों के आप एड्स कह रहे हैं, फुल पेज 6-6, 5-5 पेजेस के, वो हमारे महाराष्ट्र में भी आते रहते हैं, जबकि हम तो वहां के वोट नहीं करने वाले हैं, हम यूपी के वोटर नहीं हैं। वो इन्वेस्टमेंट के इतने बड़े बड़े आंकड़े आते हैं कि उसके जीरो गिनने में मन थक जाता है। तो क्या सरकार को इस बात का डर है कि बेरोजगारी, महंगाई, इनइक्वालिटी, ये इश्यूज उभर के आएंगे इस इलेक्शन में, और उसको अभी से हम अपना एडवर्टाइजमेंट देना स्टार्ट कर दें कि हमने इन 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 मुद्दों पे बहुत भारी और बहुत बढ़िया काम किया है? तो क्या सरकार को इस बात का डर है कि ये मुद्दे उभरेंगे इस बार? बिल्कुल डर है, और मैं एक खराब ट्रेंड भी शुरू हो रहा है। मैं इसलिए इस खराब ट्रेंड बोल रहा हूं क्योंकि एक चीज ध्यान देख लीजिए, अगर मैंने कोई खराब काम किया, मान लीजिए मैंने एक थोड़ी सी पर्ची से लेके एग्जाम में पास कर लिया और उससे नकल कर ली, तो जो अगला वाला लड़का आएगा ना, वो फिर पूरा कागज रखेगा, और उसके अगले वाला पूरी किताब रखेगा, और उसके अगले वाला बोर्ड पे कहेगा मास्टर साहब को कि आप लिखिए, मैं यहां लिखता हूं, और उसके अगले वाला मास्टर साहब से कहेगा कि आप यहां के बैठिए, आप ही लिख दीजिए। नो, द ट्रेंड इज मतलब आप देखिए तो आपको डर लगेगा, क्योंकि आप क्या काम कर रहे हैं, आप फुल पेज ऐड दे रहे हैं, और हाफ पेज में आप एक दूसरी पार्टी थी, वो जो भी पार्टी थी, उस पार्टी को लोगों ने चुना था, इस देश के इस प्रदेश के लोगों ने चुना था। अब आप 2017 से पहले क्या हुआ था, यहां गुंडागर्दी थी या कुछ था, इस प्रदेश की चुनी हुई एक राष्ट्रीय पार्टी, एक पार्टी थी जिसने सरकार चलाई थी। अब आप उसको सिर्फ गाली देने का काम कर रहे हैं, सिर्फ गाली देने का काम कर रहे हैं। मैं एक और इश्यू उठा रहा हूं जो कोई नहीं बोल रहा, और क्यों नहीं बोल रहा मुझे नहीं मालूम। ऐसा हम सब लोग जब बड़े हो रहे थे और जब हम लोग पढ़ रहे थे तो समझ में आता था कि गवर्नर जो है वो किसी पार्टी का नहीं होता है। गवर्नर साहब उस पार्टी, जो सरकार केंद्र में आ जाती है, उसके द्वारा नियुक्त तो होते हैं, पुराने पार्टी के फंक्शनरी होते हैं, लेकिन एक बार वो गवर्नर बन जाते हैं तो नॉन पार्टी मैन होते हैं, और वो किसी पार्टी के फंक्शन में नहीं जाते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि ये एक बिल्कुल बाढ़ आई हुई है पिछले एक महीने से। अब तो इस समय अनाउंस हो रहा है इलेक्शन ऑलरेडी, तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। बाढ़ आई हुई थी एक महीने से नए नए योजनाओं की, उन सारी योजनाओं की जो काफी जगहों पे हमारी गवर्नर भी जा रही थी। गवर्नर वाज सिटिंग ऑन द स्टेज, नॉट ओनली सिटिंग, इवन दी जो भी नेतृत्व था, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हो चाहे चीफ मिनिस्टर साहब हो, वो उनका नाम भी लेते थे कि भाई हमारे सबसे पहले जो नाम लिया जाता है इन एनी स्पीच, तो वो एक्नॉलेज भी कर रहे थे ये यहां बैठी हैं। सामने आप देख लेते, हर जगह भाजपा का झंडा लेके, भाजपा का नारा लेके, और वहां भाषण आप क्या दे रहे हैं, आप भाषण दे रहे हैं कि पुरानी सरकार ये गड़बड़, उसमें ये गड़बड़। मेरा सिर्फ कहना यह है कि आप इस खराब ट्रेंड को मत करिए, और खास करके जो सबसे उच्च पद पे बैठे हुए हैं। मैं ये समझ में आता, कोई कॉर्पोरेटर है उसको नई अकल है, उसको नई समझ है, लेकिन जो देश के सबसे बड़े पद पे बैठा हुआ है वो अगर आज ये कर रहा है तो मुझे खतरा दूसरा है। आप जो कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एवरीथिंग इज कंटिन्यूअस, कोई हरदम उस कुर्सी पे नहीं रहेगा। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50, जो भी आएगा, मुझे यह है कि वो
और अब्यूज मिसयूज से वो उसको अब्यूज ना और ज्यादा करने लगे। तो इस देश का जो बेसिक डेमोक्रेसी है, जो बेसिक आज की तारीख में जिसको बहुत मुश्किल से लाया गया है, वो कहीं ना कहीं उस फैब्रिक पे चोट जरूर आएगी। इसका खतरा मुझे लगता है। आनंद जी, ये देखा जा रहा है वर्ल्ड वाइड, अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें, कंट्रीज लाइक स्वीडन, कंट्रीज लाइक जर्मनी, कंट्रीज लाइक इटली, फ्रांस, वहां पे जो जनता है, अभी जो इलेक्शंस हुए हैं, बेल्जियम में हुए थे, देयर इज अ वोट कमिंग अगेंस्ट द इमिग्रेंट, इट्स एन एंटी इमिग्रेंट वोट। उसको कहीं पे एंटी माइनॉरिटी वोट भी करके देखा जा रहा है, स्पेशली इन फ्रांस। तो क्या ये एक विश्व लेवल पे एक इमर्जिंग इशू है कि वोटर अब रियल मुद्दों से हटके इन इश्यूज पे आने वाला है? और क्या दैट जस्टिफाइज इवन इन इंडिया कि लोग शायद एंटी माइनॉरिटी वोटिंग या एक एन मास किसी ब्लॉक के लिए वोटिंग की जाती है उसकी तरफ जा रहे हैं और रियल इश्यूज आएंगे ही नहीं, या उन्हें आने में और भी वक्त लगेगा? आपको क्या लगता है सर? जी, मैं एक तो बिल्कुल आपने सही प्रश्न उठाया, और इस प्रश्न पे मेरा ऐसा मानना है इसमें चर्चा होनी चाहिए। इट इज नॉट समथिंग जो कारपेट के लिए होता है ना, नहीं, इस पे बात मत करो, इस पे बिल्कुल बात होनी चाहिए। पहली चीज जो आपने कही, पूरी दुनिया एक नया चेंज देख रही है, और हर देश अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, और बिल्कुल ठीक भी है। उसको लगता है कि आई मस्ट प्रोटेक्ट, और ये एनी नेशन का, दे डोंट हैव एनी परमानेंट फ्रेंड्स, दे हैव परमानेंट इंटरेस्ट। तो आज चीन अब अमेरिका के साथ दोस्ती करने जा रहा है। चीन मतलब आज रशिया और चीन की एक समय इतनी दोस्ती थी, फिर बहुत आपस के विचारों का मतभेद हुआ 60s के बाद, आज फिर वो एक साथ आ रहे हैं। मेरा कहना ये है कि नेशन वहां पे हो रहा है कि इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट थोड़े मुश्किल बन रहे हैं, रोजगार के अवसर कम है, ठीक। हिंदुस्तान में थोड़ी बात दूसरी है, मैं दोनों पक्ष पे आऊंगा, मैं उस अल्पसंख्यक की बात पे भी आऊंगा और पहले इमिग्रेंट्स पे। हमारे यहाँ समस्या इमिग्रेंट्स की उतनी ज्यादा नहीं है। जो एक कहा जाता है और एक जो परसेप्शन बनाया जाता है, वो बांग्लादेश का जब 71 वॉर हुई थी, उस समय हमारे यहाँ करीब 1 करोड़ से ज्यादा रिफ्यूजीज कह लीजिए, या जो लोग वहां से माइग्रेट मतलब यहाँ आए थे, फिर ऐसा कहा गया कि उसमें से काफी वापस चले गए, लेकिन कुछ लोग शायद नहीं गए थे। आप उनको आप आइडेंटिफाई करने की आपने कोशिश की थी असम में, उसमें कितने सैकड़ों पैसे, आपने कितने करोड़ों रुपए खर्च, फिर फाइनली आपने मान लीजिए आज कहा है कि वो 6-7 लाख लोग। अब उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। मैं अभी हिंदू मुस्लिम पे नहीं जाता। आपने सारी एक्सरसाइज जब की, तो आप ये तो बताइए कि जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपके पीछे किताब लगी हुई है, आप जहां बैठे हैं आपके पीछे किताब लगी है, अब आप कल के दिन कहेंगे कि मैं हर एक किताब की स्क्रूटनी करूंगा, और जो किताब ये मान लीजिए अमेरिका में छपी होगी उसको मैं निकाल दूंगा। बहुत अच्छा, निकाल के उसको फेंकेंगे कहां, उसका करेंगे क्या, ये तो बताइए। क्योंकि ये अगर आपने 5 लाख लोग आइडेंटिफाई भी कर लिए कि ये आपके देश के लोग नहीं है, आप उनका करेंगे क्या? आप उनको बे ऑफ बंगाल में डुबोएंगे, आप उनको फांसी देंगे, आप उनको कंसंट्रेशन कैंप पे रखेंगे, आप, क्योंकि वो देश तो नहीं लेने को तैयार है। तो मेरे हिसाब से पहला काम ये होना चाहिए था कि हम आइडेंटिफाई करके इनके साथ ये करेंगे। बिल्कुल ठीक बात थी, अगर आप पहले से क्लियर होते कि इनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और इनके साथ ये करेंगे, कोई दिक्कत नहीं थी। आपने अपना लक्ष्य, अपना ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं किया था। आपका ऑब्जेक्टिव इलेक्शन था। भारत में जो लोग आए और जो एक टोटलिटी में माना गया, ये लोग आए नहीं। जिस तरह से बंटवारा हुआ था, ये लोग अपनी इच्छा से उन्होंने चुना कि मैं इस देश में रहूंगा। जो दूसरे धर्म, जो अलग धर्म के लोग थे, सबने चुना। मैं एज हिंदू, मेरे पास चॉइस नहीं थी पाकिस्तान जाने की, लेकिन मेरे घर के बगल का जो अब्दुल रहता है, उसके घर में चॉइस थी पाकिस्तान जाने की, बट ही सेड नहीं नहीं, मैं इस देश में रहूंगा। आज की तारीख में, आजादी के 75 साल बाद, आप उससे क्यों प्रूव करवाना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं वो हिंदुस्तानी है, वो पाकिस्तानी नहीं, और क्या वंदे मातरम बोलो, और ये क्यों, वाई? मैं इसलिए कह रहा हूं, शिव मंदिर में, मैं कुछ मंदिरों में जाते हैं, शिव मंदिर में इसलिए ज्यादा लोग जाते हैं कि वहां ये जरूरी नहीं कि आप नहा धो के जाइए, वहां जरूरी नहीं कि आप, अदरवाइज आप मंदिर में जब जाते हैं तो हाथ पैर धोते हैं, सिर पे ऐसे से डालते हैं। शिव मंदिर में सब सब माफ है, ये माना जाता है कि भोले बाबा आप कैसे भी चले जाइए। तो आज 75 साल बाद वो व्यक्ति जिसने
by his choice he said कि I will stay in this country, this is my country. आप उससे प्रूफ बार बार क्यों मांग रहे हैं? मेरी ये समझ में आता है कि आप मुझसे भी कोई प्रूफ मांगे, लेकिन आप केवल उससे मांग रहे हैं। तो वो हम लोग उसको जो बाहर के देशों में हो रहा है उसके साथ बिल्कुल 1 to 1 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के जो लोग रहते हैं उनको उस तरह से ट्रीट करना ठीक नहीं है। दूसरी बात रही, ये बार बार जो बात आती है रोहिंग्या की आती है या बांग्लादेशी होती है, ये भी फैक्ट है। कम से कम मैं 10-12 स्टेट की बात कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, जहां पे ये जो कूड़ा उठाने का काम है वो करीब करीब, वो कहते नहीं अपने को बांग्लादेशी, वो लोग अपने को असमीज बोलते हैं, लेकिन वो मोर और लेस उन लोगों के पास है। आपने उनको कोई आके आपके जनरल मैनेजर नहीं बन गए हैं, आके जिस कुर्सी पे आप बैठे इस कुर्सी को नहीं हटा रहे हैं, वो उस कुर्सी पे जा रहे हैं जहां पे आपको अपने आदमी नहीं मिल रहे हैं जो वो काम करें। आपको गटर में उतर के सीवेज साफ करने वाले आपको नहीं मिल रहे हैं, तो वो आपका सबसे लास्ट लेवल ऑफ जो जॉब है वो कर रहे हैं। और मुझे ये कि बिल्कुल आज से पॉलिसी बना लीजिए कि आज रात 12 बजे से अब मेरी बिल्कुल कटना है, मैं इसके बाद किसी को नहीं। इन लोग जो आए हैं इसमें से मैं एक कुछ बात करूंगा, वो चाहे जो भी देश हो, उससे पहले करूंगा कि भाई इतने साल से आए हैं, आप इनको वापस लीजिए, समथिंग, मेक द पॉलिसी फर्स्ट, और फिर उन लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए। क्योंकि आप एक काम क्या कर दे रहे हैं, आप अपने यहाँ की एक 15, 16, 17% आबादी को बिना बात के अंडर डाउट रख रहे हैं। वो डाउट में है, वो बोले चाहे ना बोले, उनको एक हरदम खतरा लगता है कि मैं एक धर्म विशेष से हूं, तो मुझे ये रोज सुबह उठ के एक प्रमाण पत्र, मुझे एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करना होगा कि भाई मैं हूं। मुझे सुबह उठ के वंदे मातरम बोल, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूं तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं श्री राम ना बोलूं तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन उनसे बोला जाता है कि नहीं आप ये बोलिए, आप वंदे मातरम बोलिए, आप ये गाइए। वंदे मातरम बोले या ना बोले, मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई बहुत मतलब है। इसलिए हिंदुस्तान की जो माइनॉरिटी की जो समस्याएं हैं और जो विदेश के और वो एक लार्जर स्केल पे हो रहा है, और उसका कारण भी है स्वीडन या जर्मनी, जहां के दी प्रॉब्लम इज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। हमारे यहाँ वो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के झगड़े नहीं है। हम लोग सारे, इंडिया इज अ यूनिक कंट्री, हमने सब धर्मों को अपनाया है। सो आनंद जी, आई थिंक वी आर बोथ ऑन द सेम पेज कि इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जो आम आदमी के वेलफेयर के इश्यूज हैं और जो गंभीर हैं, वो इलेक्शन में मुद्दे बनने चाहिए। कब बनेंगे और कब ये स्थिति आएगी कि जो इमोशनल बरगलाने वाले इश्यूज हैं वो हावी हो जाएं, वो ऑफ कोर्स देखने की बात है। एज वी एस्पायर फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, हमारी तो उम्मीद ये रहेगी कि रियल मुद्दों को आना चाहिए, उसी पे इलेक्शंस होने चाहिए। और ये जो 6-6 और 10-10 पेज के एडवर्टाइजमेंट आते हैं जो हमें लगता है कि जमीनी हालत से हमें दूर ले जा रहे हैं, वो कब वोटर रिजेक्ट करेगा, वो ऑफ कोर्स देखने वाली बात है। हम तो ये चाहेंगे कि कोई भी इलेक्शन हो एक डेमोक्रेसी में रियल इश्यूज पे होना चाहिए, वो इश्यूज जिससे देश की प्रगति हो और जिससे जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो उसकी प्रगति हो। तब जाके हम कहेंगे कि हमारी डेमोक्रेसी का जो रियल रंग है अब उभर के आ रहा है। Anand ji, it was so nice talking to you. It's always so good talking to you. Thank you for joining us. I will just make a closing statement. Advertisement का मतलब ही होता है कि you want to sell something. Please don't sell state. Please don't sell nation. देश को और प्रदेश को बेचिए मत। Yes. मेरा सब यही है। Thank you so much. Thank you for joining us on Beyond Headlines. Namaskar, sir.